In today's lecture, I'm going to make you understand that how to make a difference between adjective and adverb. This is important because sometimes we confuse both the parts of speech and we commit errors. To avoid such errors, we have to go for the differences between the two parts of speech, which is adjective and adverb. Now, adjective and adverb both have the adjective and adverb. So both are used for addition. Both have similarities and both have differences. So today's lecture is on the differences as well as similarities between adjectives and adverbs. Now, as we discussed earlier, both add. Adjective also add and adverb also adds. But to what? Add to what? When we say add to noun and pronoun, it is adjective. And when we say add to verb, another adverb, adjective, many other things, then that is adverb. While writing, we must keep in mind not to confuse both adjectives and adverbs because they have similar functions. Addition. Today we are going to discuss some nuances. 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 Nuances means extra details. Nuances, extra details. Nuances. You know, a lot of details. And for the details, we have to go to the petty details, small details. Number one is that adjective can be used as a complement for linking verbs. It's a bombshell. It is something very new for us. That adjective can add to verb as well. But that is complement for linking verbs. Linking verbs. Like the verb to be, is, was, are. These are linking verbs. Or we have the verb which is feel. Feel. That is also linking verb. So adjective can be used as a complement with E, not with I. Complement with E. C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Complement with E. With E means to complete. With I means admiration, appreciation. We should differentiate both the words complement with I and with E. I means admiration, appreciation. With E means completion. So, adjective can be used as a complement for linking verbs. There are many types of verbs which we have, which are available here in this Save 5 English language digital book. You can explore linking verbs. And this is called predicate adjective. This is called predicate adjective. We have two parts of a sentence, subject and predicate. I deliver a lecture. I deliver a lecture. So I, that is subject, deliver a lecture, that is predicate. Adjectives have again many types. One of the type that is predicate adjective. When I say
I feel badly about what happened. Please write this example. I feel badly about what happened. Now this is incorrect. Many people use it, but this is incorrect. I feel badly about what happened. Though badly is an adverb, but as we say that adjective is only for noun and pronoun. No, adjective can be for verb also, and this is the only exception. So here we will say I feel bad about what happened. Though feel is a verb, here should be adverb. Here is no adverb, here is adjective. तो ये जो है एक अजीब बात है कि भाई एडजेक्टिव जो है हम नाउन प्रोनाउन के यूज करते हैं. शी इज इंटेलिजेंट, तो शी प्रोनाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है. सिंपल सी बात है, समझ आने वाली बात है. वर्ब जो है, वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा. लेकिन इधर आ रहा है आई फील बैड. फील इज वर्ब, बैड इज एडजेक्टिव. वाई? बिकॉज फील इज लिंकिंग वर्ब. फील इज लिंकिंग वर्ब. इट इज नॉट अ यूजुअल वर्ब. फील जो है ये आम किस्म का वर्ब नहीं है, जैसे कि डू, ईट, राइट, स्पीक, वो एक्शन वर्ब्स है. फील में हम कोई एक्शन मैक्शन नहीं लेते. ये है भी फजूल किस्म की चीज है और ये बहुत तबाही वाली चीज भी है. खामखा फील करके बंदा अपने आप को पागल कर देता है. या कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो, एक्शन लो. फील शील में जिंदगी तबाह हो जाती है. तो वो एक और डिस्कशन है फिलॉसफी में कि फील कितनी जरूरी है, कितनी नहीं है. लेकिन ग्रामर ने भी इसको आइडेंटिफाई किया. ग्रामर ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि देखो फील जो है ये डिफरेंट किस्म का वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है. फील में आप कोई एक्शन नहीं करते, ए भी सड़ते रहते हैं. तो सड़ने के बजाय जो है ना कोई काम करो. सो आई फील बैड अबाउट व्हाट हैपेंड. नाउ व्हेन वी से हाउ यू परफॉर्म द एक्शन ऑफ फीलिंग or what you feel, there is a difference. How you perform the action of feeling and how do you feel. ये जो फीलिंग है ये फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में इस पे करोड़ों बातें लिखी गई है कि ये है क्या चीज. ग्रामर ने भी इसको स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है. तो जब मैं कहता हूं आई फील बैडली एंड आई फील बैड, दोनों में क्या फर्क है? हाउ यू परफॉर्म द एक्शन ऑफ फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल वी से goober or peanut smells badly. Peanut smells bad. So here when we say goober, goober is peanut, peanut, मूंगफली. We can say I feel badly, I feel bad. Write these two sentences. I feel badly, I feel bad. इन दोनों में फर्क है. क्या फर्क है? दोनों ठीक है ग्रामेटिकली, मतलब मुख्तलिफ है. जब मैं कहता हूं आई फील बैडली, इसका मतलब है कि हाउ आई परफॉर्म द एक्शन ऑफ फीलिंग. ये फीलिंग को मैं कैसे करता हूं. मैं फीलिंग को गलत करता हूं. ये जो फीलिंग का काम है उसको मैं गलत करता हूं, एक्शन मैं उससे बनाता हूं.
और जब मैं कहता हूं आई फील बैड, इसका मतलब यह है कि ये जो बैड एडजेक्टिव है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। व्हेन आई से आई फील बैडली, so it means how I perform the action of feeling. I feel bad means that I don't have good feelings. For example, goober, G-O-O-B-E-R, G-O-O-B-E-R, goober means peanut. So goober smells badly. या कोई भी चीज, डंग, गोबर जो है, गोबर उर्दू वाला गोबर, डंग, D-U-N-G, डंग स्मेल्स बैडली, डंग स्मेल्स बैड। अब दोनों में क्या फर्क है? डंग स्मेल्स बैडली का मतलब यह है कि ये इसके अंदर जो है वो अजीब किस्म का फीलिंग्स का एक्शन है। लेकिन रूटीन में हम क्या कहते हैं? डंग स्मेल्स बैड। goober or dung stinks, S-T-I-N-K-S, stinks. When I say smell sweet and smell sweetly, तो दोनों में फर्क है, क्योंकि smell, feel, these are linking verbs. So we have to work a lot on linking verbs when we will be discussing verb in detail. But today I wanted to bring in your kind notice that linking verb has different grammatical rules in adjective and in adverb as well. जब हम linking verb की बात करते हैं तो उसमें फिर adjective और adverb जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बन जाते हैं। For example, I say I smell terribly because I have a cold. I smell terribly because I have a cold. मुझे जो है सर्दी है, मुझे वो जुकाम है, तो मेरा अजीब किस्म का स्मेल है मुझसे निकल रहा है। तो I smell terribly. Now यहाँ terribly is adverb, smell is verb. That's why we have used terribly as an adverb, because here we are talking about the action of smell. ये जो स्मेल है बाकायदा उसका एक्शन है, मुझे फील हो रहा है, बदबू आ रही है। अगर आप कहते हैं आई फ्लावर्स स्मेल स्वीट, फ्लावर्स स्मेल स्वीट, और मैं कहता हूं फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। फ्लावर स्मेल स्वीट का मतलब क्या है? ये जो फ्लावर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, ये स्वीट है। और जब मैं कहता हूं कि फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, इसका मतलब कि उनसे अच्छी खुशबू आ रही है, एक्शन आ रहा है। Now there is, as we have in adverb and adjective, we have degrees, we have good, better, best, we have cold, colder, coldest in adjective. Similarly, we have also degrees of comparison in adverbs. हम ये समझते हैं आमतौर पर कि सिर्फ डिग्रीज जो है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सिर्फ एडजेक्टिव में है। ये बोथ आर करेक्ट, इट डिपेंड्स कि आपका मतलब क्या है। आपका मतलब ये है कि फूलों से खुशबू आ रही है, या ये फूल जो है बड़ी खुशबू वाली है। खुशबू आप आ रही है, एक्शन हो रहा है, तो फिर आपने एडवर्ब यूज करना है। अगर आप उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये खुशबूदार फूल है, तो फिर आप एडजेक्टिव यूज करेंगे। फ्लावर स्मेल स्वीट मतलब ये अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स है। बाकायदा आप गार्डन में घूम रहे हैं और खुशबू आ रही है आपको,
तो फिर आप कहेंगे फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, क्योंकि एडवर्ब का काम एक्शन के साथ है और एडजेक्टिव का काम क्वालिटी के साथ है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई जिस तरह के एडजेक्टिव की डिग्रीज है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हम सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, बैड कौन सा पॉजिटिव है? तो जो ग्रामर की सही किताब है उसमें लिखते हैं पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो क्वालिटी जो है बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसी तरह एडवर्ब के भी होते हैं। मसलन मैं कहता हूं दे अराइव्ड लेट, तो ये क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव डिग्री है। ही इज वर्किंग हार्डर नाउ, ही अराइव्ड लेट, इसमें ये जो लेट है ये एडवर्ब है। लेट क्या है? एडवर्ब। दे अराइव्ड लेट। राइट दीज एग्जाम्पल्स फॉर योर प्रैक्टिस। दे अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंच गए, देर से पहुंच गए। तो ये जो लेट का वर्ड है ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये अराइव के लिए यूज हुआ है। अराइव चूंकि वर्ब है, तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है या नेगेटिव डिग्री है? ही इज वर्किंग हार्डर नाउ, ही इज वर्किंग हार्डर नाउ। तो यह जो हार्डर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन किसका है? एडवर्ब का है, एडजेक्टिव का नहीं है। ही इजीली रन्स द फास्टेस्ट, he easily runs the fastest, run the fastest। तो fastest जो है ये क्या है? एडवर्ब है, सुपरलेटिव डिग्री। he came promptly, he came more promptly than Aslam, and he came most promptly of all। अब यहां हम एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्रीज की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की नहीं कर रहे। एडजेक्टिव हम कहते हैं ही इज द फास्टेस्ट रनर, ही इज द फास्टेस्ट रनर। रनर नाउन है, फास्टेस्ट उसके साथ क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि ही easily runs the fastest, easily is adverb, he easily runs the fastest। So both easily can be adjective, easily can be adverb. We will be discussing it later. He came promptly, वो जल्दी आ गया, पॉजिटिव डिग्री। He came more promptly than Aslam, वो असलम से जल्दी आ गया, more promptly। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। He came most promptly of all, वो सबसे तेज आ गया। तो हमारे पास 3 डिग्रीज हो गई, प्रॉम्प्ट, मोर प्रॉम्प्ट एंड मोस्ट प्रॉम्प्ट, सॉरी, प्रॉम्प्टली, मोर प्रॉम्प्टली, मोस्ट प्रॉम्प्टली। जिस तरह के हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, मोर प्रॉम्प्ट, मोस्ट प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव में, इसी तरह एडवर्ब में भी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉम्प्टली, मोर प्रॉम्प्टली, मोस्ट प्रॉम्प्टली। तो ये एडवर्ब की 3 डिग्रीज है, पॉजिटिव,
comparative, superlative. For example, we say Seema finished the homework quickly. He began to speak more quickly. She smiles the most sweetly. So ये again these are the examples of 3 degrees of adverb. She finished the homework quickly. He began to speak more quickly. She smiles the most sweetly. तो पहले सेंटेंस में क्या है? क्विकली. क्विकली एक आम किस्म का एडवर्ब है, पॉजिटिव. मोर क्विकली कंपैरेटिव एडवर्ब है. मोस्ट क्विकली, मोस्ट स्वीटली वो सुपरलेटिव एडवर्ब है. तो सिर्फ अपने जहन में ये डाल दीजिए कि भाई एडवर्ब में भी डिग्रीज होते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव में नहीं होते. हमें बहुत कम भी पढ़ाया जाता है कि भाई गुड, बेटर, बेस्ट है, तो वेल, बेटर, बेस्ट भी है. वेल, बेटर, बेस्ट भी है. मोर अर्ली और वी कैन से अर्लियर, अर्लीएस्ट. अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट. ये जो डबल सिनोनिम वाले एडजेक्टिव्स है या एडवर्ब्स है, कभी कभी इसके साथ हम मोर, मोस्ट पे लगा सकते हैं, ER और EST भी लगा सकते हैं. ओके, अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं विच आर बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. मसलन अर्ली, डेली, वीकली, ईयरली, आवरली. कल हमने डिस्कस किए थे कुछ वर्ड जो लगते एडवर्ब्स है लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं. वुमेनली, कवर्डली, वो एक और चक्कर है, ये और चक्कर है. कल हमने डिस्कस किया था कि ऐसे अल्फाज जो LY से खत्म होते हैं लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते. लवली, वुमेनली, मैनली, कवर्डली. अब ये ऐसे अल्फाज हैं जो LY से खत्म होते हैं लेकिन ये सिर्फ एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब नहीं है. अभी मैं आपको एक और लिस्ट दे रहा हूं जो वो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्ली, डेली, वीकली, ईयरली, आवरली. अब ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है. डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. मसलन मैं कहता हूं दिस इज अ वीकली जर्नल, दिस इज अ वीकली मैगजीन. ये हफ्तावार रिसाला है. ठीक है, मैं कहता हूं दिस इज वीकली न्यूज़पेपर, वीकली जर्नल. तो वीकली जर्नल जो है ये क्या है? हफ्तावार रिसाला. तो यह वीकली क्या हो जाता है? एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि जर्नल जो है ये नाउन है. अगर मैं ये कहता हूं इट कम्स आउट वीकली, इट कम्स आउट वीकली, ये हर हफ्ता बाहर आता है या छपता है. तो ये जो वीकली है ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है. जब हम जर्नल के लिए, मैगजीन के लिए, एक्टिविटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल से दिस इज माई वीकली एक्टिविटी, ये मेरा हफ्तावार काम है. आई डू इट वीकली. तो डू चूंकि वर्ब है तो यह वीकली एडवर्ब बन गया. और जब हम नाउन की बात करते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव होगा. तो एक ही वर्ड है
इसको आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से वी बोर्डेड ऑन अर्ली ट्रेन. Write these two examples. We boarded on early train. I got up early. दोनों में early है. पहला वाला एडवर्ब है, दूसरे वाला पहले वाला जो है वो we boarded an early train एडजेक्टिव है, दूसरे वाला एडवर्ब है. वजह We boarded on early train. ये जो ट्रेन है ये नाउन है. अर्ली ट्रेन का मतलब है अर्ली ट्रेन, क्योंकि ट्रेन जो है वो नाउन है, अर्ली एडजेक्टिव है. और मैं कहता हूं आई गॉट अप अर्ली, वही अर्ली है, लेकिन अब अर्ली जो है क्या बन गया? एडवर्ब बन गया. बिकॉज गेट अप जो है वो वर्ब है. मॉडर्न मैन लीड्स अ फास्ट लाइफ. ही ड्रोव द कार फास्ट. तो फास्ट लाइफ, फास्ट क्या है? एडजेक्टिव. ड्रोव फास्ट, फास्ट क्या है? एडवर्ब है. Each of us has half ownership of the property. Each of us has half ownership of the property. She was half crying, half laughing. तो जब मैं कहता हूं हाफ ओनरशिप, तो यह हाफ क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ओनरशिप नाउन है. हाफ क्राइंग, हाफ लाफिंग. क्राई, लाफ वर्ब्स है, इस वजह से यहां हाफ जो है वो एडवर्ब हो गया. दिस वॉज अ स्ट्रेट आंसर. तो स्ट्रेट आंसर में स्ट्रेट एडजेक्टिव है, आंसर नाउन है. गो स्ट्रेट, तो गो वर्ब है, स्ट्रेट जो है वो एडवर्ब बन गया. ही जस्ट लेफ्ट, तो जस्ट लेफ्ट में जस्ट जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि लेफ्ट जो है वो वर्ब है. ही इज अ जस्ट पर्सन और ही इज जस्ट, वो इंसाफ वाला है, तो यह जस्ट जो है वो एडजेक्टिव है. तो इन तमाम बहस का मकसद क्या है? बहस का मकसद ये है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे से मिलती भी है, मुख्तलिफ भी है. अगर मैंने कोई तेज बोला तो इस लेक्चर को आप बार बार सुने, 2-3 दफा सुने, तो आपको फिर समझ आ जाएगी. बुनियादी मकसद यह है कि हमसे ये गलतियां ना हो जाए, क्योंकि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब में मिस्टेक्स करते हैं. इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ऐड करते हैं. और कभी कभी एडजेक्टिव जो है एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है. डिपेंड करता है सेंटेंस में यूज पे. इस वजह से माइंड को बड़ा खुला रखना पड़ता है कि यार ये जो लफ्ज है ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है. तो मेन जो मोटा मोटा कानून है, मोटा मोटा कानून क्या है कि एडवर्ब जो है वो जाएगा वर्ब के साथ, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के साथ. एडजेक्टिव जाएगा नाउन और प्रोनाउन के साथ, लेकिन दरमियान में ये मिक्स हो जाते हैं. तो उस मिक्स करने के लिए ये जो है हमने आज थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज किया. प्लीज रीड द रिसोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल ऑन वर्ब, adverb, adjective, noun, pronoun, so you can connect these 4 parts of speech, because these 4 parts of speech are interconnected. The polysemy you can call it, but fast can also be a homonym. Fast has so many other meanings.
ही कीप्स फास्ट, ठीक है, वो कुछ खाता नहीं, अपने आप को भूखा रखता है, रोजा रखना, फास्ट, वो एक फिर और चक्कर है। एक तो पार्ट ऑफ स्पीच में फास्ट चेंज हो जाता है, मीनिंग एक है, ही इज फास्ट, ही राइट्स फास्ट। अभी दो सेंटेंसेस में जो फास्ट है ये एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। फास्टली एक अलग एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब है, लेकिन खुद फास्ट एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। फास्ट के और भी माने हैं तो वो एक और चक्कर है, वो तो फिर होमोनिम और सिनोनिम्स और उन चीजों में हम जाते हैं। ही इज फास्ट, वो तेज है, वो तेज लिखता है। पहले जुमले में फास्ट ही के लिए है, इस वजह से फास्ट जो है ये एडजेक्टिव है। दूसरी मीनिंग में ही राइट्स फास्ट, वो तेज लिखता है, तो ये जो फास्ट है ये राइट के लिए, ही के लिए नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका टारगेट क्या है। तो सिंटैक्टिकल यस, सिंटैक्स, pragmatics, pragmatics means context, situation, speaker, mind of the speaker, situation. Language is a very complicated thing, it is not easy. That's why most of the people say that silence is gold, silence is gold. खामोश रहो जी, ज्यादा बातें ना करो, बातें करोगे तो पंसोगे। However, in the modern times, communication is gold, communication is gold. बातें करने पड़ेंगे, लिखना करना पड़ेगा, और बोलने और लिखने में जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है that is accuracy, and accuracy comes from grammar. Accuracy comes from grammar. जब आपने मुंह खोल लिया या हाथ को आपने लिखना शुरू किया, so communication is gold, be correct. सबसे पहला डिमांड यह है कि ग्रामर की गलती ना करो। ग्रामर की गलती जो है कोई भी माफ नहीं करता। The mistakes of grammar are unpardonable. ये मिनिमम, बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं, BARE, बेयर मिनिमम, सबसे छोटा डिमांड क्या है? ग्रामर की गलती ना करो। बाकी इसमें कितना गुड़ डालते हो, कितना जो है ना उसको मीठा करते हो, क्या फिलॉसफी मिलाते हो, लिटरेचर मिलाते हो, साइंस मिलाते हो, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, उसका तो कोई हद नहीं है। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। बेयर मिनिमम सबसे छोटा डिमांड क्या है जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं है? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। उसके बाद तो लोग जो शेक्सपियर भी बनते हैं, और कोई जो है अपने दुबई में बाप को खत लिखते हैं तो वो भी हमसाये के पास जाते हैं, जी मेरा खत लिखो, यहाँ पर खैर खैरियत है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बाकी हाल अहवाल ये है। तो वो जो उसके लिए परेशान होते हैं कि जी मैं अपना खत किससे लिखवाऊं। वो क्वालिटी में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई अरस्तु बनता है तो कोई गरीब अपना नाम नहीं लिख सकता, अंगूठा लगाता है, लेकिन ग्रामर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग डेली grammar parts of speech, so that your adverb, your adjective become 100% accurate. All the best. Take care.